various methods of setting the price of the product. We already understand by that. So MSRP, the first one is manufacturing suggested retail price, ठीक है, MSRP, and उसके बाद we done with the competitive pricing, price below the competition. Price below the competition मैंने क्या बताया था? Cost below the, yes Naman? मैम उसमें जो pricing, that is known as predatory pricing, in which the price of the product, whatever we are setting, that is below the competitor's price. And why we are using that? For increasing the market share, for increasing the number of the customers in the store. And who are using this kind of predatory pricing strategy? Big retailers, they are large retailers who are the giants in the market. And what, by this step, what happened? इस तरीके के स्टेप लेने से क्या होता है? The situation is that the small retailers are adversely affected, है ना? जो छोटे मोटे retailers होते हैं उन पे adverse effect पड़ता है. So big retailers are setting the price of the product less than the competitors, whatever the competitors are setting the price, या फिर market price से low price. Clear हो गई बात? समझ में आ गया? Now the prestige pricing. In the prestige pricing, that is a contrary of the predatory pricing. In this situation, we are setting the price of the product that is high as comparison to the competitors. ठीक है? तो prestige pricing में क्या होगा कि competitor से ज्यादा price high रखेंगे, और इसके लिए क्या क्यों high रखेंगे? What is the reason behind it? Why we are setting the price of the product high? Always remember, the customers are the king of the market. We all know. अगर कभी भी देखना कि दो कंपनी सेम टाइप के प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगी, तो कॉस्ट में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो कस्टमर लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को प्रेफर करेगी. ट्रू, सही बात है. तो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स होना चाहिए जिसके लिए कस्टमर विलिंगली अपने खुद से वो ज्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी हो. ठीक है? सो व्हाट आर दोस फैक्टर्स? वो फैक्टर्स क्या है? दैट इज गिवन इन योर बुक. फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव ब्रांड. एक्सक्लूसिव ब्रांड जो बहुत कम ब्रांड है, कौन कौन हो सकते हैं? गुची, राइट? उसके बाद रोलेक्स, ठीक है, ऑडी. ये इस तरीके लग्जरियस प्रोडक्ट है जिनके अल्टरनेटिव बहुत रेयर प्रेजेंट है. एप्पल, वी कैन टेक द एप्पल एज वेल, राइट? ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट और कॉम्पिटिटर्स एक्सेसिव अवेलेबल नहीं है. सो दे आर नोन एज द एक्सक्लूसिव ब्रांड्स. ठीक है? एक्सक्लूसिव ब्रांड जो लग्जरियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे बर्बेरी, क्लोथ्स के लिए बर्बेरी, अरमानी. These are those companies who are selling the exclusive product, and their retail stores are very rarely present in any of the region. यानी ये उस टाइप के कंपनीज होती हैं, ब्रांड होती हैं जो बहुत कम जगह पे अवेलेबल भी होगा. सही बात है? पटना में गुची इज अवेलेबल? नो, राइट? सो वी कैन से दैट इन सो मेजर सिटीज में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक रीजन में इस टाइप के स्टोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो वैसे ब्रांड ऑब्वियसली हाई प्राइस लेंगे क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. तो इन दैट सिचुएशन वी कैन सेट द प्राइस हाई. क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज ब्रांड इमेज ऑफ द स्टोर. इफ द इमेज मतलब आपका गुडविल स्टोर का ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो यू कैन सेट द हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है ना? अच्छे ब्रांड में थोड़ा पैसा ज्यादा देना पसंद करोगे कि नहीं? राइट? सो ब्रांड इमेज. एक मिनट, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरीवन. ओके, नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग. This psychological pricing technique is for increasing the sale of the product. अब psychological pricing, that is related with the mind of the customer. First, what they can do, they can show the price of the product like 1500. They will cross it, and after that they will put 499. Psychologically, it shows that the earlier the price of the product is very high, but now we are giving you at very low price. So we are basically happy to purchase those products. First thing. Second thing, कि the price of the product, यहाँ पर एक हो गया. Now the second one is that the price of the product, majority of the branded company, what kind of strategy they are using? They are always using the odd number. क्या use करते हैं वो हमेशा? Odd number, like 499, 599, 899, like this. Why they are using so? Because by watching this kind of numbers, 499, 399, 299, we never analyze
In when we see 299, we never analyze that it is nearby 300, but our first letter we'll focus. Like 2 is written, so we'll think that it is very low cost, right? So psychological pricing is this kind of technique जहां पर customers जो हैं because of seeing that कि product का price बहुत low है, they are willingly purchase the product. Clear हो गई बात? Psychological pricing. Next one is multiple pricing. Multiple pricing. Next one is multiple pricing when the number of products, जो बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ जब हम बंडल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं, ये सबसे ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूज करती है. Amazon में देखना, if you will purchase one product, you will get like this, one ये खरीदिए प्लस ये खरीदिए और प्लस ये खरीदिए, you will get it for 800. इस तरीके से देखते हो नीचे बन के आता है. So that is a bundle pricing when the so many number of products, एक से ज्यादा प्रोडक्ट को जब हम बंडल बनाकर एक प्राइस में वो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं. ये जरूरी नहीं है कि एक ही टाइप के प्रोडक्ट हो, ये अलग भी हो सकते हैं, अलग ब्रांड के भी हो सकते हैं और रिलेटेड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं. जैसे मान लीजिए परफ्यूम ले रहे हैं एक कंपनी का, तो दो अलग अलग कंपनीज के भी परफ्यूम आ गए. So that are the same. Sometime एक ही कंपनी का तीनों परफ्यूम हो सकता है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है. या फिर हो सकता है कि और भी एडिशनल कोई कॉस्मेटिक्स आइटम आ जाए उसी पर्टिकुलर ब्रांड का, लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट का प्राइस एक सिंगल प्राइस में डिटरमाइन होगा और दैट इज ₹800. सो दैट इज नोन एज मल्टीपल प्राइसिंग. क्लियर हो गया सबको? मल्टीपल प्राइसिंग क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट वन, discount pricing, where according to discount pricing the retailers are providing discount on the product. अब यहाँ पर जो discount है, कई बार तो retailers जो होते हैं जो लोकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो तो अपने हिसाब से डिस्काउंट देते हैं. मतलब that is not determined by the manufacturer, because retailer will determine that what discount they want to give to the consumer. That is in the local product, right? That is not in the standardized and the branded product. But in the situation of the branded product, what we understand in that the company is suggesting the retailers to discount the price of the product. आई बात समझ में कि यहाँ पर डिस्काउंट का एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर उसके स्टोर अवेलेबल है चेन स्टोर की तरह, तो वो हर जगह पे एक टाइम पे डिस्काउंट ऑफर देंगे. अब डिस्काउंट देने का क्या रीजन है? आउटडेटेड स्टॉक को क्या करना? क्लियर करना. क्लियर हो गई बात? यहां तक टाइप्स ऑफ प्राइसिंग क्लियर है. इसके अलावा मैंने एक प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन दोनों बताया था. क्या है ये? प्राइस स्कीमिंग जो स्ट्रैटेजी होता है, याद रखिएगा, मैंने एडिशनल 2-3 मैंने सोचा बता देती हूँ आपको प्राइस की स्ट्रैटेजी. प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है इन द इनिशियल स्टेज when we are putting the price of the product high, when we are entering in the market, जब हम मार्केट में एंटर करते हैं, ठीक है, तब उस समय हम प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखते हैं? हाई रखते हैं. क्या रखते हैं? हाई रखते हैं. ठीक है. अब प्रोडक्ट का प्राइस क्यों हाई रखते हैं? इसका वैसे ही रीजन है प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह. या तो कंपनी जो प्रोडक्ट लेकर आ रही है वो इनोवेटिव और नया प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में नहीं है. ठीक है. ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल रहा है. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि जब नई कंपनी कोई नया, मतलब कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा तो ऐसे प्रोडक्ट का डिमांड कंज्यूमर का तो रहेगा, तो कंज्यूमर अपने आप हाई प्राइस में भी प्रोडक्ट को क्या करेगा? परचेज करेगा. सो दैट इज प्राइस स्कीमिंग. ज्यादातर ये टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में डील करती है वो कंपनी ज्यादातर इसको यूज करती है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्राइस पेनिट्रेशन. अच्छा, प्राइस स्कीमिंग का बेनिफिट क्या है? प्राइस स्कीमिंग का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इन द शॉर्ट टर्म यू विल अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. यानी कि इनिशियल स्टेज पर ही आपको काफी ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा. प्रॉफिट क्या में होगा? मिलेगा आपको. आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होगा. लेकिन इन द सेकेंड सिचुएशन क्या है? प्राइस पेनिट्रेशन. यहां पर प्रोडक्ट का प्राइस इनिशियल स्टेज में जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये दोनों केस लॉन्च करने ऑफ प्रोडक्ट में है. ठीक है. पहला प्राइस स्कीमिंग, सेकेंड वाला. अब यहां पर प्रोडक्ट का प्राइस हम क्या रखेंगे?
लो रखेंगे। अब क्यों लो रखेंगे प्रोडक्ट का प्राइस? बिकॉज हो सकता है कि मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया हो, या तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर चाहिए। क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर। कंज्यूमर जल्दी आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करे और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप प्रॉफिट अर्न करो। सो पहले वाले में रीजन होता है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना, इसमें क्या है? प्रॉफिट ग्रेजुअली अर्न करना, कंज्यूमर लॉयल्टी इंक्रीज करना, मार्केट शेयर इंक्रीज करना। सो दैट इज price penetration and the first one is price skew. तो I guess retail pricing जो भी मैंने करवाया है क्लियर हो गया है? डन? रागिनी, रश्मि, शनाया क्लियर? सो व्हाट इज श्रिंकेज? श्रिंकेज को होता है मतलब कि जो आपका बुक इन्वेंट्री है, यानी जितना आपके पास स्टॉक प्रेजेंट था, जितना इन्वेंट्री आपके पास था और आपके पास जितना फिजिकल काउंट बचा, मतलब कि जितना आपके पास इन्वेंट्री बचा और सेल हुआ, इन शॉर्ट। तो अगर आपका कांस्टेंट जो इन्वेंट्री था, यानी जितना मतलब मान लो 500 यूनिट्स लेकर आए किसी कोई भी कपड़े का, ठीक है, क्लोथ्स का, अब वो फाइनली काउंट करने पे वो 498 हुआ, तो इसका मतलब कि वो स्टॉक श्रिंक हो गया 2 यूनिट से। आई बात समझ में? सो दैट इज नोन एज श्रिंकेज। बहुत सारे बच्चों ने श्रिंकेज गलत लिखा है, इसीलिए मैंने समझा दिया। श्रिंकेज क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? सो देयर आर सम नेगेटिव रीजंस फॉर दैट, लाइक शॉप में थेफ्ट होना, एम्प्लॉइज थेफ्ट एंड ऑल, एंड सम टाइम इट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा दैट इज हैपनिंग। ये सब रीजन से क्या होता है? शॉप लिफ्टिंग, ठीक है, सॉरी श्रिंकेज। अब उसके टेक्निक्स क्या क्या है? कैमरा, प्रॉपरली एम्प्लॉइज ट्रेनिंग, ठीक है, प्रॉपर कैबिनेट, फिर उसके अलावा आप लिख सकते हो कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी, लाइक हम लोग क्या करते हैं, चिप्स वगैरह प्रोडक्ट में अटैच करते हैं ताकि अगर कोई भी बाहर उसको लेकर के जाएगा, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी हैपन कि that will be give alarm, right? So there are so many techniques for reducing the shrinkage in the store. आगे बात समझ में? और उसके अलावा नोट्स भी मैंने लिखवाया है, किसी बच्चे से ले लेना। चलिए, how to reduce shrinkage is given, prevention of paperwork, internal theft, all these are the techniques. ये सारे टेक्निक्स हैं शनाया, how to reduce shrinkage. Okay, so कस्टमर सर्विस पे हम आते हैं। कस्टमर सर्विस क्या होता है? कस्टमर सर्विस, इसके बाद विल स्टार्ट डूइंग व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ गैप। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस? एनीवन? ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस? क्या होता है कस्टमर सर्विस? The additional facilities which is provided as an addition of the product, यानी किसी प्रोडक्ट के साथ जब आप कोई एडिशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, ठीक है, फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस, बहुत ये सारी सर्विस है। सर्विस इज इंटैंजिबल, राइट? अब अगर हम रिटेल स्टोर देखें तो इफ विल गो टू द एनी मॉम एंड पॉप स्टोर और इफ विल गो टू द बिग बाजार, we'll see the difference between both the store or not. First thing, that all the things is properly classified in the big bazaar, but in the same if you see the mom and pop store, that is not as such organized. In so many mom and pop store there is a lack of proper space, true, but in the same situation if you see the big bazaar, you will see so many people around you. They are the customer sales representative, okay? They are the sales representative. They will help you or guide you while purchasing the product, right? So the situation in the both the store, unorganized and organized store, how we can differentiate it with the help of customer service. सही बात है ना? एक स्टोर में जाइएगा, अगर एक नमक खरीदने एक पैकेट आसपास के स्टोर में, तो फटाफट पैसा देना, फटाफट वो आपको नमक देगा. They are not going to tell you that about the multiple types of salt present. They are not going to guide you so much, right? But in the same situation, if you will see the big bazaar, you will take the help of the sales representative. So customer service क्या है? एक तरीके से additional facilities है जो आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में क्या करता है? हेल्प करता है.
ठीक है, प्रोडक्ट दोनों सिमिलर भी सेल करेंगे, लेकिन आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्वालिटी जो है उस प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। आई बात समझ में? तो कस्टमर सर्विस क्यों जरूरी है रिटेल में, क्लियर हो गया? ठीक है, आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर लॉयल्टी को इंक्रीज करने के लिए, सेल, आपकी प्रॉफिट के लिए, इन सब के लिए क्या जरूरी है, आपका कस्टमर सर्विस। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस थ्रू कस्टमर सर्विस, I already explained these terms, but still I am repeating all these things. एक बार देखिएगा, उसके बाद we'll start with the gaps model. अच्छा, अगर हम कस्टमर सर्विस की बात करें तो सबसे पहले एक रिटेलर को अपने माइंड में क्या रखना चाहिए, जो मैंने सबसे पहले लाइन बताया था कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। आपका रिटेल सस्टेन करेगा या नहीं करेगा मार्केट में, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कंज्यूमर, ऑलवेज रिमेंबर, राइट? Because if we'll see the retailers are kind of sellers, वो सेल ही तो करते हैं प्रोडक्ट को, है ना? उसके लिए वो वेरियस टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, तो दैट इज who are they are रिटेलर्स। अब रिटेलर्स को क्या क्या चीजों को देखना पड़ेगा, पहली बात कि आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कीजिए, कस्टमर को गाइड कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन रखिए, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए किसको, कस्टमर सर्विस जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। सो दीज आर द पॉइंट्स, ये सब पॉइंट क्या चीज के, कस्टमर सर्विस हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कस्टमर सर्विस जरूरी नहीं कि आपका हर चीज पॉजिटिव में चले, somehow the customers are varies, so you will face the various kind of situation, अलग अलग situation आ सकता है। तो ऐसे situation में because of your better customer service you can manage these adverse or worse situation, right? What are those? First one is dealing with the disgruntled customer, like how you can deal with the customer who are very angry with the product or the customer service whatever you provided. So in that situation, कई बार होता है ना, गलत कोई सामान मिल जाता है कस्टमर को, या प्राइस गलत होता है, किसी भी सिचुएशन में जब कस्टमर को गुस्सा आ जाए, तो इस सिचुएशन में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, कस्टमर के साथ डील करना, है ना? तो डिसग्रंटल्ड कस्टमर को आप किस तरीके से मैनेज करें, क्लियर है? किसी भी तरीके का प्रोडक्ट प्रोवाइड कीजिए, कोई भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कीजिए, अगर आपने प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है उसके साथ कस्टमर सर्विस भी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे कि कस्टमर को आपको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं दोगे, है ना, प्रॉपर प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्रॉमिस भी जो भी आपने किया है वो दोनों कंबाइंड वे में चलना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, स्टे काम एंड, मतलब ये सारा कंडीशन है, ये सब सिचुएशन है एक अच्छा कस्टमर सर्विस का, ये सर्विस प्रोवाइडर का। पहला है कि इस पर्सन को या फिर कस्टमर जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे हैव नॉलेज टू हाउ टू डील विद द डिसग्रंटेड कस्टमर। डिसग्रंटेड मतलब एंग्री, गुस्से वाले कस्टमर, ठीक है? सेकंड है स्टे काम एंड रिमेंबर इट्स नॉट पर्सनल, लाइक इफ द टू पीपल आर टॉकिंग, ठीक है, अगर मान लीजिए, तो यहां पर सेकंड सिचुएशन इज स्टे काम, रिमेंबर इट्स नॉट पर्सनल। सी, यू आर आल्सो इन द प्रोफेशनल प्लेस, नो वन इज रिलेटेड विथ योर लाइफ, ठीक है? यस, दे आर प्रोफेशनल, इन प्रोफेशनल लाइफ दूस पीपल मैटर्स, इन शॉर्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, ठीक है? So if the customers are blaming you, if the customer is angry or any of the reason, if there is a properly क्या और एक dispute arise हुआ है, तो ऐसे situation में you have to be calm, because that person is not saying anything personal on your personal life, they are saying about the company, or if anything such kind of thing happened, यहाँ पर आपको polite रहना है। क्या रहना है? Polite रहना है। ऐसा नहीं कि वो लड़ रहा है तो आप भी लड़ जाओ, no। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर को है तो पहले तो सुनिए what kind of things, what he or she is explaining, so first listen, and after listening his or her problem you have to give them better solution rather than increasing the more problem। मतलब प्रॉब्लम को बढ़ाने से अच्छा उनको क्या दिया जाए, प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाए। ट्रू? क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट वन इज, और कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, जैसे इफ मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, गुड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको अगर वो पर्टिकुलर कस्टमर जो है वो बोल रहा है कि ये कंपनी ऐसा बेचता है वैसा, मतलब अगर कुछ भी वो ब्लेम कर रहा है कंपनी के ऊपर, ब्रांड के ऊपर, एनीथिंग, सो इन दैट सिचुएशन यू डोंट नीड टू से यस यू आर सेइंग राइट, नो। In that situation, you have to make it complete in the positive way. आपको उसको डायरेक्शन पॉजिटिव में ले जाइए और उसको समझाइए
that is done because of this reason, or we'll give you the better product rather than this, कुछ भी आप उसको समझाइए, ठीक है। तो यहां पर आपके खुद का काम जो है वो रिड्यूस, कम नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन, apologize and empathize. Empathize. In short, empathize. ठीक है, अब समझ में आई बात? Empathize and apology. Clear? Sometimes this happened with me as well. Don't and empathize. इसका मतलब क्या हुआ? Empathy का मतलब क्या होता है? It is related with the sympathy. यानी कि दया दिखाना, ठीक है। एक आप बोल सकते कंसर्न दिखाना। क्या होता है, जैसे कहीं चोट लग जाता तो पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, अरे चोट लग गया, तो दैट इज अ कंसर्न और एम्पैथी फ्रॉम योर पेरेंट साइड। द सेम सिचुएशन यू हैव टू फॉलो, द सेम कंडीशन, सेम थिंग यू हैव टू फॉलो। इन सम सिचुएशन द जो हार्म हुआ है वो कई बार बहुत एक्सेसिव होता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की वजह से कोई लॉस हो गया। क्लियर हो गया? तो ऐसे सिचुएशन में rather than to blaming to the consumer, you have to show the empathy, ठीक है। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने, आपकी तरफ से गलती हुई है, तो उसको तो पहले आप अपॉलॉजी कीजिए। अपॉलोजाइज का मतलब क्या होता है? दैट इज माफी मांगना, ठीक है, अपॉलॉजी। एंड एम्पैथाइज का मतलब क्या हुआ? दैट इज कंसर्न दिखाना, दया दिखाना कि आपका जो लॉस हुआ है उसके लिए मुझे भी काफी दुख है। सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट वी कैन यूज, ठीक है। और कभी भी कस्टमर अगर अपसेट है तो उससे डिस्प्यूट अराइज नहीं करना है, अपॉलॉजी और एम्पैथाइज के साथ काम चलाना है। और ऑल्सो सेपरेट द इमोशन, दिस ऑल्सो सेपरेट द इमोशन फ्रॉम द प्रॉब्लम। अच्छा, नेक्स्ट वन इज रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम को सॉल्व करने की योर्स। In short, we can say that if there is a problem, if that is related with any of thing, related with the warranty, guarantee or any of the services, किसी product related हो सकता है, service related हो सकता है, कोई भी problem अगर है, तो try to solve it as soon as possible. Don't delay it, ठीक है, डिले मत कीजिए, लेट मत कीजिए। बार बार ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि जहां पर आप खुद जो है वो जो सोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं, आप उनको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। एज सुन एज पॉसिबल उनके प्रॉब्लम को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई भी सिचुएशन जो भी है उसका रेमेडी यानी सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट वन इज फॉलो अप। Follow up is related once you will solve the problem of the customer, either it is a complaint or either that is a normal advice। कुछ भी चीज अगर है, कई बार कस्टमर, हम एडवाइस भी तो लेते हैं ना, फोन करके भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से पूछते हैं ना, कस्टमर केयर को भी कई बार फोन करते हैं, तो या तो कंप्लेन होता है, या तो एडवाइस होता है, या तो नॉलेज जाना होता है। इन सब चीजों की हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, ट्रू। तो कोई भी अगर आपने सॉल्यूशन दे दिया, यानी अगर आपके रिटेल स्टोर या फिर कंपनी ने अगर सॉल्यूशन दे दिया, तो सॉल्यूशन के बाद आपको फॉलो अप लेना है कि आप उस सॉल्यूशन से कितना सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है, क्या वो आपके प्रॉब्लम के लिए प्रॉपर है, या स्टिल यू वांट टू कंप्लेन अगेन, ये भी आपके पास ऑप्शन आएगा। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉलो अप और फीडबैक इज इंपॉर्टेंट फॉर होम, फॉर द कंपनी और द रिटेलर्स। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ हाउ टू मैनेजिंग द कस्टमर्स, ठीक है। किस तरीके से कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, कौन कस्टमर, बेटर कस्टमर सर्विस के ये सारे फीचर्स हो गए। नेक्स्ट वन इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स का मतलब अपनी गलतियों से सीखिए। क्या सीखना है? अगर आपने डीलिंग विथ ईच अनप्लीजेंट कस्टमर शुड गिव यू अ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा कस्टमर है जो प्रॉपरली आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योस क्रिएट कर रहा है, रक्कस इन शॉर्ट क्रिएट कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, एनी ऑफ दीज थिंग्स, दैट इज गोइंग टू गिव यू द एक्सपीरियंस दैट नेक्स्ट टाइम हाउ यू कैन डील विद दीज पीपल, ठीक है। दीज कस्टमर, इन कस्टमर के साथ आप नेक्स्ट टाइम किस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं, दे आर बेसिकली बस बोलते हैं ना, इन शॉर्ट तमाशा करते हैं, बेसिकली उनको प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा उनके पास होता नहीं है, जितना ज्यादा वो एग्जैजरेट करते हैं प्रॉब्लम्स को। ट्रू। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको वही पोलाइट रहना है, काम रहिए और उनको समझाइए कि द प्रॉब्लम वट एवर यू आर रेजिंग, दैट इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, दैट कैन बी सॉल्व विद इन 1 or 2 minutes, राइट। सो अपने जो भी गलतियां हो रही हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, और हो भी सकता है कि कई बार कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइडर है, दे आर नॉट एबल टू टैकल द सिचुएशन, बट दैट इज बेसिकली हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है। Next one is there are some like how you can ensure customer service with dazzle customer and competitors alike. Determine what makes what you offer special, यानी कि भाई offers वगैरह बताइए उनको। Customer service ideas दीजिए। Choose one or more your shiny customer service idea, implement them. Stay proactive, keep gathering customer service ideas. So it is related with how you can basically किस तरीके से customer service को improve कर सकते हैं, better कर सकते हैं। तो determine कीजिए what makes what you offer special, यानी कि बोल सकते हैं कि competitor के comparatively आप better customer service provide कीजिए, offers दीजिए, है ना। Next है, और ये सारे offers उसमें बहुत मिलते हैं जो service sector से। सर्विस सेक्टर क्या होता है? कौन होता है? रिटेलर्स, ठीक है, सर्विस देते हैं। और hospitals, educational institutes, insurance companies, these all are banks, these are the service sector, right? स्टडी द कस्टमर के, और कई बार हम क्या कर सकते हैं कि कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि वट एवर सर्विस वी प्रोवाइडेड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट और नॉट। If you are not, for what reason you are not satisfied, so we can give them a column or we can ask for the questionnaire as well. Questionnaire का मतलब क्या होता है? जो questions का list आपको दे दिया जाएगा, you can tick on that कि क्या यहाँ better था, क्या better नहीं था, you can give the grade as well. Scale भी होता है, ठीक है। जो भी ऐसा लगे, और आप आइडियाज ही मांग सकते हो कि हम अपने सर्विस को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो कस्टमर्स जो आइडियाज देते हैं, जो भी बेटर लगे, यू कैन इम्प्लीमेंट देम इन योर स्टोर एज वेल। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया जो भी पॉइंट्स बताया मैंने कि कस्टमर्स को बेटर सर्विस दीजिए, कॉम्पिटिटर से डिफरेंट सर्विस दीजिए, बेहतर दीजिए बाकी कॉम्पिटिटर से। कस्टमर से क्वेश्चनियर कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या सर्विसेज आपको पसंद नहीं आया, हाउ वी कैन इम्प्रूव द सर्विस, एंड वट एवर आइडियाज आर गिवन फ्रॉम देम, वट एवर इज गुड, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी सही है उसमें से, यू कैन इम्प्लीमेंट देम इन योर स्टोर एज। क्लियर? यहां तक समझ में आया? नाउ व्हाट इज गैप मॉडल? गैप्स मॉडल ऑफ इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस। Before that, I just want to tell you what is the meaning of service quality. That is related with the customer service. So ध्यान से सुनिएगा। First of all, what is the meaning of service quality? Right, everyone. What is the meaning of service quality? अगर सर्विस क्वालिटी की हम बात करें तो सर्विस को मेजर करना दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वी कैन मेजर द गुड्स वेरी क्विकली बट वी कैन नॉट डू द सेम थिंग विद द सर्विस। व्हाई? सर्विस को मेजर करना क्यों डिफिकल्ट है? वेरी गुड, बिकॉज इट इज इंटैंजिबल, वी कैन नॉट सी इट। ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस इट बट वी कैन नॉट सी और टच द service. So first of all, what is the meaning of service quality? Service quality क्या होता है? लिखिए, service quality is the output of service delivery system. Service quality is determined by the output of service delivery system. Service quality is determined as the output of service delivery system, as the output of service delivery system. अच्छा, service delivery system का मतलब क्या होता है? सर्विस किस तरीके से कंज्यूमर को पास किया जा रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया इस लाइन से कि हाउ सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, व्हाट इज द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस, इट मतलब जो आउटपुट है सर्विस डिलीवर करने का, that will determine the service quality. जितना बेटर तरीके से डिलीवर कीजिएगा उतना ज्यादा सर्विस क्वालिटी क्या होगा? हाई होगा। यहां तक समझ में आई बात?
सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? जो सर्विस देता है। सर्विस टेकर कंज्यूमर। जहां पर ये दोनों मिलते हैं दैट इज नोन एज सर्विस इनकाउंटर। उसको क्या बोलते हैं? सर्विस इनकाउंटर। जहां पर एक्सचेंज ऑफ सर्विस होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। सर्विस दिया, पैसा मिला, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू जो हो रहा है दैट इज सर्विस इनकाउंटर। जहां पर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस टेकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं दैट इज सर्विस इनकाउंटर। सर्विस डिलीवरी क्या है? दैट इज द आउटपुट ऑफ द सर्विस डिलीवरी सिस्टम, यानी सर्विस को कैसे डिलीवर किया गया है उसका जो आउटपुट है दैट विल डिटरमाइन सर्विस क्वालिटी। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को मैं एक लाइन बोलती हूँ, याद रखिएगा, प्योर सर्विस की तरह कोई कंसेप्ट नहीं है। प्योर सर्विस के नाम का कोई भी चीज नहीं होता है प्योर सर्विस। ठीक है। सर्विसेज हो सकता है जिसमें टैंजिबल प्रोडक्ट की थोड़ा कम हो और इंटैंजिबल ज्यादा हो, दैट कैन बी पॉसिबल। जैसे एजुकेशनल सेक्टर। एजुकेशनल सेक्टर क्या होता है? यहाँ पर आपका मेन पर्पस क्या है कॉलेज का? एजुकेशन। But with that, we are also getting so many facilities like uniform, library, books, right? So we can say that pure service जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि एडिशनल में कुछ ना कुछ टैंजिबल तो मिलता ही है ना सर्विस के साथ। अब डॉक्टर जो है वो क्या है? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में किस लिए जाते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। मेन पर्पस क्या है? मेडिकल ट्रीटमेंट। तो ये सर्विस सेक्टर में आएगा, लेकिन उसके साथ साथ मेडिसिन भी मिलता है ना कई बार। हाँ, तो टैंजिबल चीजों के साथ कहीं ना कहीं सपोर्टेड होता है। तो क्वेश्चन कभी भी आएगा कि प्योर सर्विस के जैसा कुछ है, तो आंसर इज नो। लेकिन हाँ, सर्विस में आपका एजुकेशनल सेक्टर्स और हॉस्पिटल दोनों आता है। प्योर सर्विस में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा है कि व्हाट इज प्योर सर्विस और 3 चीज टैंजिबल और 1 इंटैंजिबल है, तो इंटैंजिबल पे टिक लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्विस गैप क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस गैप? लिखिए, व्हाट इज सर्विस गैप? राइट, सर्विस गैप। सर्विस गैप इज अ deviation, a discrepancy. A service gap is deviation, a discrepancy between what was planned. A service gap is a deviation, a discrepancy between what was planned and what is done. What was planned and what is done in the end, or between what was expected and what is perceived. A service gap is a deviation, a discrepancy between what was planned and what is done in the end, or what was expected, difference between what was expected and what was perceived. अच्छा, यहां पर इसका मतलब क्या है? What was expected and what is perceived, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मिला? ठीक है। सो सर्विस गैप एक तरीके का जो गैप है वो क्यों है? किसी चीज की कमी होना, जो चीज आपने सोचा था कि आप डिलीवर कर पाओगे सर्विस और आप वो नहीं कर पाए। ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड था कि आप इस टाइप से सर्विस दीजिएगा, लेकिन आपने उस तरीके से उसको नहीं प्रोवाइड किया, सो वहां पर क्या बन जाता है? सर्विस क्या बन जाएगा? सर्विस गैप। ठीक है। अब सर्विस क्वालिटी को अगर समझना है शॉर्टकट में, तो एक डायग्राम बना लो, लिखो एक्सपेक्टेड सर्विस, राइट, ठीक है, यहां पर इसको लिखते हैं एक्सपेक्टेड सर्विस। ठीक है, एक ब्लॉक बनाइए, यहां पर लिखिए परसीव्ड सर्विस। ठीक है, उसके बाद ये दोनों दिख रहे हैं सब बच्चों को ना, और उसके बाद सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर लॉयल्टी।
ठीक है। सर्विस क्वालिटी के आगे मैंने लिखा है कस्टमर सर्विस और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सॉरी, एंड कस्टमर लॉयल्टी। एक्सपेक्टेड सर्विस, परसीव्ड सर्विस, better service quality, customer satisfaction, customer loyalty. So this is a diagram which is showing the service quality scenario कि सर्विस क्वालिटी कैसा होना चाहिए। जो भी हमने एक्सपेक्ट किया अगर वही परसीव होगा तो बेटर सर्विस क्वालिटी होगा, उससे कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाई होगा और फाइनली कस्टमर क्या बनेगा, लॉयल बनेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अब एक चीज आता है सर्व क्वेल। सर्व क्वेल इज अ शॉर्टकट ऑफ सर्विस क्वालिटी। सर्व क्वेल, जो सर्व क्वेल है, ये जो टर्म है सर्व क्वेल, इसको इसके ब्रैकेट बगल में ब्रैकेट बनाइए, लिखिए रैटर, RATER, रैटर। सर्व क्वेल लिखिए, अब बगल में लिखिए रैटर। सर्व क्वेल और ब्रैकेट में लिखिए रैटर। सर्व क्वेल और बगल में लिखिए रैटर। ठीक है। अब सर्विस क्वालिटी और ये जो टर्म रैटर है, ये क्या है, इसकी स्टोरी बताती हूँ। सर्वक्वेल एक सर्वे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। सर्वक्वेल जो है, सर्विस क्वालिटी जो है, यहाँ पर सर्वक्वेल का नाम जो है और रैटर जो दिया गया है, ये दिया गया है परशुरामन जेठिमल के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है? जेठिमल, ZE लिखे, ZEITHMAL, जेठिमल, ठीक है, एंड परशुरामन, ठीक है। तो जेठिमल और परशुरामन के द्वारा 1985 में ये इंस्ट्रूमेंट को लाया गया था, जो इंस्ट्रूमेंट हमें सर्विस क्वालिटी को मेजर करने में हेल्प करेगा। तो इसका नाम क्या दिया गया? सर्वक्वेल और ब्रैकेट में यहाँ रैटर। अब रैटर इज द फुल फॉर्म ऑफ सो मेनी वर्ड्स। अब क्या क्या चीजें हैं ये? 5 डायमेंशन सर्विस क्वालिटी का, ये 5 डायमेंशन, RATER। R से लिखिए रिलायबिलिटी, R से लिखिए रिलायबिलिटी, ठीक है। A से लिखिए रिलायबिलिटी, हो गया। A से लिखिए एश्योरेंस, R से रिलायबिलिटी, A से एश्योरेंस, T से टैंजिबिलिटी, E से एम्पैथी और R से रिस्पॉन्सिवनेस, सर्वक्वेल सर्विस क्वालिटी रैटर, this is an instrument which is basically designed by Zethimal and Parsuruman in 1985 to measure the service quality. It is a research tool. And what is the data? Raider is an acronym of R से क्या था? Reliability, A से assurance, T से tangibility, E से empathy and R से responsiveness. ठीक है। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये 5 डायमेंशन ऑफ सर्विस क्वालिटी जो है, ये आपकी सर्विस क्वालिटी को बेटर करने में हेल्प करेगी। कैसे? आपको रिलायबिलिटी, इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म द सर्विस सेट ऑफ सर्विस डिपेंडेबली एक्यूरेट, यानी जो भी सर्विस आप दीजिए वो कैसा होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। अगर मिस्टेक्स नहीं होगा तो सर्विस क्वालिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा कम मिस्टेक उतना ज्यादा बेटर सर्विस। ठीक है। सो फर्स्ट R समझ में आया। रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ? एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग द सर्विस राइट द फर्स्ट टाइम एंड मेंटेनिंग एरर फ्री रिकॉर्ड, यानी किसी भी सिचुएशन में आप सर्विस गलत प्रोवाइड मत कीजिए। एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? R से रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। नाउ द सेकंड वन इज एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब क्या है? इट इज द नॉलेज एंड कर्टेसी ऑफ द एम्प्लॉइज एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ whom?
कस्टमर, यानी कि आपको इस तरीके से एश्योरेंस देना है, किसको एश्योरेंस देना है, कस्टमर को, कि दे विल अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर सर्विस दे आर टेकिंग दैट इज, कैसा है वो, जो भी सर्विस वो ले रहे हैं वो कैसा है, आप ट्रस्ट क्रिएट कीजिए, भरोसा हो, कस्टमर को भी भरोसा हो कि आप जो सर्विस आपको मिल रहा है वो सही है, और कस्टमर में कॉन्फिडेंस आए, कंफ्यूजन नहीं हो, क्या हो, कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट हो। क्लियर है? और ये चीज कौन कर सकता है, द एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग इन द रिटेल स्टोर, दे विल क्रिएट द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द कस्टमर्स, so that they can purchase the product easily and free mind. ठीक है, they are not confused between the product. Clear होगी बात, समझ में आया? Now TER, tangibility, empathy and responsiveness, we'll do it in the next class. Anyone have any doubt? किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन क्लास, we are basically on the customer service because today's in retail we are basically based on ऑर्गेनाइज रिटेल। तो ऑर्गेनाइज रिटेल में सबसे ज्यादा क्या है, कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन योर टॉपिक, आपके सिलेबस में है। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया। सर्विस क्वालिटी क्या है, आउटपुट ऑफ सर्विस डिलीवरी सिस्टम, आप किस तरीके से सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं। जितना बेटर आप जो भी एक्सपेक्टेशन बनाइएगा अपने सर्विस के लिए और जो भी आप प्रोवाइड कीजिएगा, अगर बेटर होगा तो सर्विस क्वालिटी बेटर होगा, फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा एंड कस्टमर लॉयल बनेगा। सर्वक्वेल एंड रैटर जो है, दिस इज बेसिकली इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज डिजाइन्ड बाय ज़ेथिमल एंड परशुरामन इन 1985 टू मेजर द सर्विस क्वालिटी। इट इज अ वे टू इंप्रूव द सर्विस क्वालिटी। ठीक है, तो आर से रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ए से एश्योरेंस, दैट इज अ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट among the customers, and who will do that, employees। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। TER, ये तीनों नेक्स्ट क्लास में विल कंप्लीट।